अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना चक झुमरा की हदूद में एक नौजवान कत्ल होता है और फिर पुलिस एक्शन में आती है। महज चंद घंटे के अंदर कातिल गिरफ्तार हो जाता है। कत्ल होने वाला कौन था, कातिल कौन था और कत्ल किस बात पे हुआ, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, हमारे यहाँ मामूली बातों पे तल्ख़ कलामियाँ और यही तल्ख़ कलामियाँ लड़ाई झगड़ों में तब्दील होना एक मामूल बन गया है। टीम मुजरिम कौन आज जिस वाक़े पे बात कर रही है वो फैसलाबाद में थाना चक झुमरा की हदूद में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक मामूली तल्ख़ कलामी जो है वो एक खून रेज़ी में तब्दील हो गई और एक नौजवान अपनी जान से गया। क्या हालात बने, हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं और मकतूल के भाई भी हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम काशिफ अली है। काशिफ, बताइएगा क्या वाक़या क्या पेश आया, ये कातिल कौन है, क्या दुश्मनी थी इसके साथ, और ये सारा वाक़या जो पेश आया इसको ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताइए। सर, इस बीमा पॉलिसी मेरे भाई ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ बीमा पॉलिसी ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਾਜਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ ਧੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ ਵਾ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੀਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿਓ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਦਿਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਘਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਐਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲੂਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਰ 4 ਭਾਈ ਹਾਂ, 3 ਭੈਣਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਯਾਤ ਨੇ? ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਰਾਨਾ ਸਟੋਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ? ਜੀ ਸਰ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੇਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਕਸਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਲਿਦੈਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਸਰ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਸਰ ਦਾ, ਅਸਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹਨੇ ਸਰ ਸ਼ੂਟਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਬਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਦੀ ਸਿਰਫ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ? ਸਹੀ ਤਾਵਨ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਨਾ ਅਦਾਵਤ ਲੈਣ ਦੇਣੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ 80,000 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, 1 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਤੇ ਫੜਾ? ਸਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ, 20 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਛਾਤਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬੀਨ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੀਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾ। ਇਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਤਬਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਗਵਾਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਾਜਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਚਲੀਸਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਸੁੱਟਣੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਸਵੇਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਤਲ करवा दे। गुफ्तगू आपने सुनी मुद्दई मुकदमा की, और केस यकीनन आपको मुद्दई की गुफ्तगू से समझ में आ गया होगा। हम मुआशरती तौर पर यकीनन दरिंदों से बढ़कर हो गए हैं। एक शख्स जो पहले एक सादा लॉ फैमिली को अपनी चिकनी चपड़ी बातों में फंसाता है कि मैं तुम लोगों की कोई लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कर रहा हूँ, 5 लाख दोगे तो कुछ अरसे के बाद वो 8 लाख होकर तुम्हें वापस मिल जाएंगे। सादा लॉ लोग हैं, बातों में आ गए और उसे पैसे दे दिए, और जब वापस टाइम पूरा हुआ, तकाजा किया गया, तो हीलो बहानों से काम लिया। अभी देता हूँ, कल दूंगा, फ़लाँ हो गया, मेरे मैनेजर की बेटी बीमार है, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत से बहाने करता रहा। और जब इनकी फूफो और भाई घर पे गए और जाके तकाजा किया कि भाई हमारे पैसे हैं, हमें हमारे पैसे लौटा दो, तो उस बदबख्श शख्स ने बजाय पैसे वापस करने के ये समझा कि 8 लाख की खतीर रकम है, देनी पड़ेगी। उसने शूटर्स बुलवा के या ख़ुद जैसे भी किया, उसने एक इंसानी जान ले ली और कत्ल कर दिया। मुलज़िम पुलिस की हिरासत में है और अब उसके ख़िलाफ़ केस भी तैयार है और उसे इसकी करार वाकई सज़ा भी दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, फैसलाबाद में चक झुमरा के इलाके में एक मर्डर की ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में कोहराम बपा कर दिया। एक सफ़ेद पोश गरीब ख़ानदान का चश्मो चराग गुल हो गया, और वाक़या इस तरह से पेश आया कि एक नौसरबाज फ्रॉडिया अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में एक नौजवान को उलझाता है और उसको अपने दाम में राम करने के बाद कहता है कि अब मैं तुम्हारी इंश्योरेंस यानी कि बीमा पॉलिसी कर रहा हूँ और मुझे पैसे दो, कुछ अरसे के बाद यानी 5 लाख दो, कुछ अरसे के बाद वो 8 लाख होकर तुम्हें वापस मिल जाएंगे। सादा लो देहाती आदमी उसकी बातों में आता है और अपनी जमा पूंजी उसके हवाले कर देता है। जब ड्यू टाइम आता है और रकम का तकाजा किया जाता है तो यही नौसरबाज अपने कहे से मुकर जाता है और पहले हीले बहानों से काम लेता है। जब पूरी फैमिली, मुतासरा फैमिली जो है वो उसके घर से रुजू करती है और कहते हैं कि हमारे पैसे लौटा दें, तो फिर ये एक बाकायदा प्लान करता है और उस प्लान के तहत एक खूनी वारदात को अंजाम देता है। मेरे साथ उस मकतूल के दोस्त मौजूद हैं जो अहले इलाका भी हैं, साथ रहने वाले जिसको पंजाबी में लंगोटिए यार कहते हैं, दोस्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर मकतूल का गुनाह क्या था, क्या ऐसा जुर्म मकतूल ने किया जिसकी पादाश में उसे अपनी जान से हाथ
धोने पड़े। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम, अब्दुर्रहमान नाम अब्दुल भाई की काम करते हो तुसीं? है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਝੁੰਬਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀਆਂ 'ਚ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤਗਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਵਰਗਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਲੰਗੋਟੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਲਾਦਰੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਸਤੀ ਗੰਢੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਟੂ ਪਾਇਆ, ਬੀਨ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਭਾਈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਢੇਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2000 ਦੇਣਾ, 4 ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਜਾਂ ਦੇਣ? ਨਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜੇ ਬੇਤਕਲਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੜ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਚੱਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ? ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਾਤਲ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ।
नाज़रीन इकराम, दोस्त की गुफ्तगू आपने सुनी और अहले इलाका, दोस्त अहबाब, तमाम लोग यक ज़ुबान हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ है। ये इंतहाई गरीब फैमिली थी, गरीब ख़ानदान था और इनके साथ होने वाले जुल्म का अजाला ज़रूर होना चाहिए और वो उसी सूरत में हो सकता है जब मुल्ज़िम को उसकी ड्यू करार वाकई जो है वो सज़ा मिलेगी। दूसरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए। अहमद शेर अहमद शेर, तुसी भी ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ? जी बिल्कुल ਸ਼ੁਰੂ ਲਾ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ बिल्कुल जी ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇਕੱਠੇ। जी बिल्कुल। ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਮਕਤੂਲ ਦਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਕ ਜੁਮਰੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਜਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੋਲੀਆਂ, ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਕਿਕਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾਈਆਂ, ਫੇਰੇ ਟੋਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਮਤਲਬ ਮਸਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਆਦਮੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਬਿਲकुल ਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬੀਨ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਾਣੂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਸ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਬਣੀ ਸਾਡੀ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾੜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ? ਪਾੜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ 5-7 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਬਿਲकुल। ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ? ਹੋਸ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੈਸੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਝਟ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਯਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਮਕਤੂਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੋਗ 'ਚ। ਕਾਤਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਸ तरह ਦਾ ना करे। नाज़रीन, दोस्तों की गुफ्तगू आपने सुनी और यक ज़ुबान है, इनका बुनियादी तौर पर दोस्ती के रिश्ते से इस वारदात की वजह से एतबार उठ गया है और उस गरीब ख़ानदान के साथ इज़हार हमदर्दी फरमा रहे हैं। ये दोस्त आंखें नम हैं, लब कपकपा रहे हैं और शायद अल्फाज नहीं हैं उसे याद करने के लिए, उसकी फैमिली को तसल्ली देने के लिए, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है कि कातिल को करार वाकई सज़ा मिलेगी और कानून अपना रास्ता ज़रूर बनाए। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद के थाना चक झुमरा के अंदर और बात हो रही है उस कत्ल की
जिस ने पूरे इलाके की फ़िज़ा को सोगवार कर दिया। लेन देन का तनाज़ा क्या इस हद तक बढ़ सकता है कि एक कीमती इंसानी जान ज़ाया कर दी जाए। पुलिस ने इस केस में सबसे बेहतर और पॉजिटिव काम जो ये किया कि कातिल को महज चंद घंटों के अंदर ही अरेस्ट कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना चक झुमरा इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या केस था, रिपोर्ट कैसे हुआ और फिर रिस्पांस जो पुलिस पार्टी का था वो क्या था इसमें? वालेकुम सलाम। सर ये ऐसे हुआ कि 15 पे कॉल हुई कि एक बंदे को 2 बंदों ने कत्ल कर दिया है। तो हम मौके पे पहुंचे तो बंदे की डेड बॉडी मोटरसाइकिल के साथ पड़ी हुई थी और उसके सर पे और गर्दन में 2 फायर लगे हुए थे। हमने फौरी जब PFSA को कॉल की और शवाहिद इकट्ठे किए, उसके बाद आला अफसरान SP साहब मदीना टाउन और DSP साहब निशाताबाद वो भी मौके पे आ गए। इस तरह हमने फिर एक इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन करते हुए हमने दायरा कार इसके दोस्तों और जो इसके लेन देन वाले बंदे थे उनकी तरफ वसी किया। तो इसी दौरान में पता चला कि एक बंदे ने इससे कुछ चंद दिन पहले 5 लाख रुपए अदा लिए थे, जो इसमें वादा किया था कि मैं आपको 8 लाख रुपए वापस करूँगा। इसी लीड पे हमने काम किया और उस बंदे को हमने गिरफ़्तार करके इंटेरोगेट किया, जिसने बताया कि मैंने अपने खालाजाद भाई के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया और इस तरह इसको घर से बुला के इधर सड़क पे हमने कत्ल कर दिया और इस तरह मुलज़म हमारी गिरफ्त में आ गया और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम इसकी तफ्तीश अच्छे तरीके से तफ्तीश अमल में लाकर इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। मतलब साहब इस तरह के केस में सर जब इत्तला मिलती है तो बज़ाहिर वो एक ब्लाइंड होता है और पुलिस के लिए चैलेंज होता है कि आखिर इस एक शख्स को कौन और किस तरह से मार गया। तो एक काबिल पुलिस ऑफिसर जो है वो जब जाए वक़ुआ पर पहुंचता है तो सबसे पहली जो उसकी सोचने की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? जैसे आपने बताया कि हमने जब तफ्तीश को एक्सपेंड किया, खोला, तो इसके दोस्तों, घर वालों समेत जो लेन देन वाले हैं, तो सबसे पहला जो है वो क्या होता है कि इसके मर्डर से जिसको फ़ायदा हो सकता है वो शख्स शक के दायरे में आता है, या फिर कोई एक ख़ास किस्म की कोई ट्रेनिंग होती है जिसको यूटिलाइज़ करते हुए आप स्टेप वाइज आगे चलते हैं? सर इसमें एक कन्फ्यूज़न थी कि कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद ये किसी ने रॉबरी के दौरान कत्ल कर दिया है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज़ थी जिसको हमने हमारे तजर्बे में थी कि इसको डबल फायर लगा था और डबल फायर दोनों फायर इसको एक सर में लगा था और एक गर्दन में लगा था, जो आम तौर पे डकैती में नहीं लगते। और इसके अलावा डकैती के दौरान बंदे को उस वक्त फायर लगता है रॉबरी या डकैती के दौरान जब वो मज़ामत करता है, जबकि उसके जिस्म पर या उसके कपड़ों के समय ये नज़र नहीं आता कि उसने किसी के साथ मज़ामत की है। और इसके अलावा उधर एक बच्चा था आई विटनेस है जिसने हमें बताया कि इसने कोई मज़ामत वगैरह नहीं की। कुछ 2 बंदे आए हैं जिन्होंने इसको फायर मारा और फायर मार के चले गए। अच्छा, हमारे ज़राए सर ये बताते हैं कि जो कातिल है वो बाकायदा ड्रामा करता रहा है घर वालों के पास, दोस्तों के पास आके, और पुलिस भी जब पहुंची है तो वो प्रिटेंड ये करता रहा है कि हाय हाय मुझे तो पता ही नहीं क्या हो गया। तो इस तरह का जो मुलजिम होता है जिसकी फिर बाद में पुलिस जो है आइडेंटिफिकेशन करती है, कितना मुश्किल होता है। जो अदाकार भी पूरा हो और अदाकारी भी कर रहा हो कि जी मैं तो बड़ा मासूम हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा इसके मरने का मुझे दुख है, तो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? सर इस तरह हमें जो अब हम इंटरोगेशन करते हैं, लोगों को देखते हैं, अपने तफ्तीश के दायरा कार में लाते हैं, तो जो बंदा गिल्टी होता है जिसने ये वक़ूआ किया होता है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका जो एक ख़ास तौर पे जो तरीक़ाकार होता है वो ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम लोगों से अब नॉर्मल होती हैं, हट के होती हैं। इसी को हम जज करते हैं और इसी तरह उसी को आगे चलाते हैं और उसी से हमें ये लीड मिलती है और फिर इस तरह ये कत्ल का इंकशाफ हुआ। अफजल भाई, चक झुमरा फैसलाबाद डिवीज़न का सबसे डेंजरस थाना कंसिडर किया जाता है। आपके पास मुझे कोई छड़ी भी नज़र नहीं आती। कौन सी जादू की छड़ी है अफजल साहब के पास कि 1 साल तकरीबन आपको इसी रीजन में हो गया है, लोग आपसे सेटिस्फाई भी हैं, आपने बहुत सारे केसेस हमने खुद कवर किए ऐसे जो इतने मुश्किल थे, ब्लाइंड थे, इवन आपने 10-10 साल के गड़े हुए मुर्दे भी उखाड़ लिए। क्या ऐसा जादू करते हैं आप कि आप फ़ौरन से पहले जो है वो केस की नोयत को जांचते हुए न सिर्फ असल मुलज़िमात तक पहुंचते हैं बल्कि उन्हें गिरफ़्तार भी कर लेते हैं? सर इसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे जो सीनियर अफसरान होते हैं
उनकी इंटरेस्ट लेवल का होता है। जो हमारे एसपी साहब मदीना टाउन और डीएसपी साहब निशाताबाद हैं वो बड़े कम्पिटेंट हैं, और उनका एक ऐसे होता है कि जैसे कि वो काम इतनी डेडिकेशन से करवाते हैं कि हम उनकी जो गाइडेंस है उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। तो इस तरह हम जब बंदा डेडिकेट हो और कंसिस्टेंट हो तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला राह दिखा देता है और अल्लाह ताला बंदे को कामयाबी दे देता है। एक तो गवर्नमेंट लेवल पे कैंपेन चली, और दूसरा हमने इस इलाके में ख़ास तौर पर देखा कि एक मखसूस कल्चर जो दुश्मनदारी, डेरेदारियों वाले डाला कल्चर था, एक क्लाशनकोफ कल्चर था, वो तकरीबन अगर 100% था तो वो अभी तकरीबन 15 से 20% पे आ गया है, तकरीबन ना होने के बराबर हो गया है। क्या समझते हैं आपके जो ख़ास तौर पे हुकूमत पंजाब की, आईजी पंजाब की जो कैंपेन है ये असले की कि इसको डी वेपनाइज़ किया जाए, क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियरली आके सरेंडर करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपना नाजायज़ असला जो है वो सरेंडर कर दें? सर, इस लिहाज से जो थाना जुमरा है और जुमरा तहसील के 2 थाने हैं, इनमें वेपन का सबसे ज़्यादा रवाज है। ये लोगों को खाना मिले या ना मिले, लेकिन वेपन ये ज़रूर रखते हैं और इस शो भी करते हैं, और यहाँ पे कत्ल भी सबसे ज़्यादा हुए हैं। लेकिन एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम सीएम का जो विज़न है डाला कल्चर के ख़िलाफ़, उसका भी 100% रोल है इसमें। उसके अलावा उसी विज़न के मुताबिक हमने जो इनके पे सख्ती की है, और हम बिल्कुल इनको किसी के बारे में सॉफ्ट कान या हम किसी से कोई ऐसी हमदर्दी नहीं रखते। तो इस तरह जब कानून पे अमलदारी होती है और सख्ती होती है तो फिर कोई ना कोई जो होता है वो मामला हल हो जाते हैं और उसमें फिर कोई लचक नहीं होती। असल भाई, अगर कोई चक झुमरा थाने के एरिए का शहरी अगर वो ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे और उसके पास अगर कोई नाजायज़ वेपन है और वो अगर आपके पुलिस स्टेशन में सरेंडर करना चाहता है, तो क्या जब तक गवर्नमेंट ने अभी ड्यू डेट दी हुई है कि आप कर दें, तो क्या वो तसल्ली रखे कि उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसे एक ज़िम्मेदार शहरी करार दिया जाएगा और उसका वेपन जो है वो सरेंडर करवा लिया जाएगा? सर, ये डेफिनेट जो बंदा खुद सरेंडर करता है वो उसको राहत मिलती है, उससे हम उसके, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी भी है, जो बंदा खुद सरेंडर करेगा, असला जमा कराएगा, वॉलंटियर करवाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अफजल भाई। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर अफजल की गुफ्तगू आपने सुनी और आपने जाना कि किस तरीके से थाना चक झुमरा में एक नौजवान को जो है वो पैसे के लेन देन पे कत्ल कर दिया जाता है, और पुलिस महज चंद घंटे के अंदर न सिर्फ मर्डरर को आइडेंटिफाई करती है बल्कि गिरफ़्तार भी कर लेती है। और दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की एक कैंपेन, जो मुनज़्ज़म कैंपेन है, वो चल रही है कि पंजाब को डी वेपनाइज़ करना है, इसे असलहे से पाक करना है। उस सिलसिले में भी आपने सुना कि सबसे डिस्टर्बिंग जो एरियाज़ होते हैं उसमें भी चक झुमरा का शुमार होता है, और ये डीएसपी सर्कल और एसएचओ थाना की जो है ये कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि इस इलाके में से इन दोनों चीज़ों का बहुत तेज़ी से खात्मा हो रहा है। टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना चक झुमरा में, और हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर राय बशीर साहब, जिन्होंने इस केस को लम्हा बलम्हा देखा और जिन्होंने उस टीम को लीड किया जिसने कातिल को गिरफ्तार किया। नाज़रीन इकराम, राय बशीर साहब से बात करने से कबल एक दफ़ा फिर टीम मुजरिम कौन इस बात पे हैरत ज़दा है कि आखिर हम दरिंदों का वो झुंड क्यों बनते जा रहे हैं जो मामूली तल्ख कलामियों पे कत्लो गारत गरी पे उतर आते हैं। चक झुमरा में होने वाली इस खूनी वारदात में भी एक गरीब घर का नौजवान महज इसलिए मारा गया कि उसने अपने ही पैसे जो किसी को दिए थे उनका तकाजा किया था। आखिर हम इस कदर बेसब्रे और अनापरस्त क्यों होते जा रहे हैं कि हम ना तो किसी की बात सुनने के रवादार हैं और ना ही किसी की सौंपी गई अमानत को वापस करने के लिए तैयार होते हैं। राय साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये क्या केस था, रिपोर्ट कैसे हुआ और फिर पुलिस ने इस पे रिस्पांस जो है वो कैसे दिया? ये केस ऐसे है, ये दोनों आपस में दोस्त थे, मकतूल भी और मुलज़म है। तो ये जो मुलज़म है ज़ीशान नामी, ये चक 107 है पहाड़ंग, इधर का रहने वाला है, और जो मकतूल है वो 161 गाँव है नेपाल का, उधर का रहने वाला है। इनकी आपस में दोस्ती थी कि ये जो मुलज़म है इसने सब्ज़ बाग दिखाया इसको, मकतूल को, कि आप 5 लाख रुपया दें मुझे, 1 साल बाद आपको ना
8 लाख रुपया मिलेगा। वो जो डबल शाह टाइप का ख्वाब या कोई ऐसा कि मैं तुम्हारी इंश्योरेंस करता हूँ, ये तुम्हारा बीमा है, ये तुम मुझे दे दो 5 लाख और 1 साल के बाद जो है वो तकरीबन 8 लाख जो है वो मैं तुम्हें वापस करता हूँ। ये उनकी बातों में आ गया। वाकफ कार से नज़दीक गाँव है, तो इसने 5 लाख रुपया इसको दे दिया। वो अरसा पूरा हो गया तो इसने कहा मेरे पैसे वापस दें, लेकिन ये टाल मटोल से काम लेता रहा। उसने कहा 8 नहीं देते तो 5 ही दे दें मेरा, मैं गरीब आदमी हूँ। है भी गरीब आदमी, दुकान छोटी सी बनाई है। तो इसने प्लान बनाया इसका, घर से बुलाया इसको, आए चले आपको पैसे देते हैं, फैसलाबाद जाना है। तो आगे 2 आदमी खड़े किए हुए थे, गांव के नज़दीक ही पुल है सेम का। उधर जब पहुँचे तो उस पर हमलावर हो गए, उसको कत्ल कर दिया। थोड़ी देर बाद 15 करने चले, तो फौरी तौर पर हम उधर पहुँचे। हमारे डीएसपी एसपी समान ऐसे जो मैं तो जाहिर है सर, जो पुलिस और ख़ास तौर पे फैसलाबाद पुलिस जो है, इसका तो मिशन ही ये है कि ख़ास तौर पे खुदा न खास्ता जब कोई बड़ी वारदात, कत्ल जैसा जब हीनियस क्राइम होता है, तो फिर जो है वो पूरे का पूरा सर्कल एक तरह से, या एसपी साहिबान, आप लोग खुद ऑफिसर सारे मौका पर पहुंचते हैं। जब टीमें मौका पर पहुंची तो फिर वहाँ क्या सीन था? बस उधर डेड बॉडी हमें मिली है, खून में लथपथ पड़ी है। हमने जो कार्रवाई होती है वकूआ की, वो ज़रूरी कार्रवाई की है। उधर तो डेड बॉडी को कब्ज़े में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई है, मुलाजा मौका किया है, शहादतें इकट्ठी की हैं। उसके बाद हमने टीमें बनाई हैं मुलजमान को गिरफ़्तार करने के लिए। तो थोड़ी देर में ही हमने एक मुलज़म गिरफ़्तार कर लिया जो मेन मुलज़म था। तो बकाया मुलज़म अभी फ़रार है, तो उनके लिए टीमें बन गई हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही वो। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है सर कि पुलिस चाहे तो पताल की तय से भी जो है वो मुलज़मान को अरेस्ट कर लेती है, और इस केस में भी एक गरीब ख़ानदान का कत्ल हुआ है, यकीनन मुलज़मान जो हैं बाकी वो भी पुलिस पकड़ लेगी। बशीर साहब, एक सवाल है सर, इस केस में ख़ास तौर पर हमारे जो सादा लोग, देहाती लोग हैं, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आपका एक बहुत वसी तजुर्बा है, आपने हज़ारों लोगों को लाइफ में डील किया होगा। ये जो लेन देन के मामलात हैं, क्या इसमें लोगों को बिठाकर तसल्ली से लिखत पढ़त जिसको हम कहते हैं ये कर लेनी ज़रूरी नहीं है? क्योंकि अगर इस तरह के मामलात लिखत पढ़त, और जैसे हमारी शरीयत भी कहती है कि लिख लिया करें, इसको सनद के तौर पे इस्तेमाल कर लिया करें, अगर ऐसे मामलात हों तो आप समझते हैं कि इस तरह के फिर जो नौसरबाज हैं, फराडी हैं, उनको स्पेस कम मिलेगी? वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये जो लानती किस्म के लोग हैं ना, इनको लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका काम ही फ्रॉड करना है। ठीक है, वो इनके एतमाद में आ गया, जाती लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, तो उसने एतबार किया इस पर, लेकिन उसने इसका सिला जो है ये दिया। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको गिरफ़्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। मैं इस थाने में पहले 3 मर्डर हुए हैं, नामालूम भी नामजद भी, उनको मैंने सज़ाए मौत कराया। 3 मुकदमे 302 के, तीनों में सज़ाए मौत हुए हैं। बशीर साहब, आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और हम आईजी पंजाब साहब से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ऐसे ऑफिसर्स जिनका जो है रिकॉर्ड बेदाग होता है, जो इस तरह के हीनियस क्राइम्स को ट्रेस आउट करते हैं, बल्कि सज़ा दिलवाने तक पीछा करते हैं मुलज़मान का, उनकी खिदमात को ज़रूर एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, ताकि दीगर लोगों की हौसला अफजाई हो और पुलिस में एक मोटिवेशन, एक जज्बा उभरे कि हमने पूरी सदाकत, पूरी दयानदारी से अपने हल्फ के साथ वफादारी करते हुए जो है वो अपना काम करना है। बशीर साहब, ये थाना चक झुमरा का इलाका, ये दुश्मनियों में, कत्लो गारत गरी में, ये डाला कल्चर में, क्लाशनकोफ कल्चर में, ये वैसे ही काफ़ी बदनाम ज़माना है। अब क्या समझते हैं कि अब जो पुलिस का तरीक़ाकार है, जैसे पुलिस ने अभी वो नाजायज़ असले के ख़िलाफ़ भी मुहिम शुरू की हुई है, तो किस हद तक जो है वो इसमें कमी आएगी और इंशाअल्लाह अमन होगा? ये जो इधर कल्चर था ना, डाला कल्चर, क्लाशनकोफ, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, ना होने के बराबर है, कोई नज़र नहीं आता, सब आ गए हैं। तो पुलिस इस बात पर बहुत वर्क कर रही है। हम इंशाल्लाह दिन रात
इसी काम पर लगे हुए हैं। ये जो बदमाशी है, कत्ल व गारत है, इस ख़त्म हो जाए, और ख़त्म हो भी गई है। ये बदमाशी नहीं है, ये तो लालच वाला आदमी था, इसमें लालच में आकर अपने पैसे हज़म करने के लिए ये काम किया है। तो इंशाअल्लाह ताला इन मुलज़मान को गिरफ़्तार करके हम काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। जब एक पुलिस ऑफिसर अपना काम करके मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाता है बशीर साहब, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम का एतमाद जो है वो पुलिस पे किस हद तक बहाल होता है, किस हद तक लोगों को सुकून होता है कि हाँ हमारे मुहाफ़िज़ हमारे लिए हैं, हमारे लिए मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में इंशाल्लाह हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता? मेरे भाई ये बात ये है कि जिस आदमी को भी तकलीफ़ होती है ना, कोई उसके साथ मामला बनता है तो वो हमारे पास आता है, पुलिस के पास आता है। अगर हमारे पास आकर उसको उसकी तकलीफ़ ख़त्म ना हो तो फिर इधर आने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो भी आता है इंशाअल्लाह ताला उसका मसला हल होता है और आइंदा भी होता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन किराम, इंस्पेक्टर राय बशीर हमारे साथ मौजूद थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना चक झुमरा, और बता रहे थे कि कैसे एक मर्डर रिपोर्ट होता है और उस पर फौरी तौर पर पुलिस जो है वो हरकत में आती है। आला हुक्काम की हिदायत और सरबराही में जब पुलिस एक्शन लेती है तो महज चंद घंटे के अंदर इस कत्ल का मरकज़ी मुल्ज़म गिरफ़्तार हो जाता है। जो फ़रार मुल्ज़िमान हैं उनके लिए भी पुलिस जो है वो तहर्रुक कर रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी कानून की गिरफ्त में होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कैसे फैसलाबाद में थाना चक झुमरा की हदूद में एक शख्स को लेन देन के मामले पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, मफरूर मुल्ज़िमान की तलाश भी जारी है, लेकिन सवाल यहाँ फिर वही है कि आखिर कब तक हम अपनी ज़िंदगियों में दरिंदगी पर उतरे रहेंगे, कब तक ये अदम बर्दाश्त हमारी जड़ों को अंदर से खोखला करती रहेगी और इंसानी जानें ज़ाया होती रहेंगी। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।